Hello friends, welcome back. I hope you are enjoying it. Doubtnut question है if the function f defined on open interval pi by 6 to pi by 3 by f of x equal to under root 2 cos of x minus 1 whole upon cot of x minus 1 when x not equal to pi by 4 and k when x equal to pi by 4 is continuous। हमको बोला गया कि फंक्शन मेरा क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो हमको फाइंड करना है देन द वैल्यू ऑफ के, इसमें से कौन सी के की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, चूंकि फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अगर कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन की लिमिट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 पे एग्जिस्ट करेगी। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4 अंडर रूट 2 कॉस ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन कॉट ऑफ एक्स माइनस 1। ना अगर मैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करता हूँ, ओके, तो ये कौन सा फॉर्म बनेगा, 0/0 का फॉर्म बनेगा, जिसे मैं इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलता हूँ। ओके, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो जब इनडिटरमिनेट फॉर्म हमको मिलता है तो हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स। ओके, और होल अपॉन कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब एक्स इंटू पाई बाई 4 पुट करता हूँ तो हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन पाई बाई 4 होल अपॉन कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 बाउंड अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा मेरा दैट इज 2 सिंपल। तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2, यानी कि लिमिट मेरी कितनी आ गई, 1/2। क्योंकि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो हम देख सकते हैं एफ ऑफ पाई बाई 4 विल इक्वल होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4 एफ ऑफ एक्स के। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू 1/2 और यही मुझको के की वैल्यू थी। ओके, तो यहाँ से के कितना आ जाएगा मेरा 1/2। तो ऑप्शन 1, ओके, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ओके, थैंक यू, एंजॉय लर्निंग। Question is the function fx equals to x square minus x square where this represent our greatest integer function is discontinuous and these are our options. So we have fx equals to x square minus x square greatest integer function. In this part we have to first find the greatest integer function and then do the squaring of this part. And here first we have to do the squaring of x part and then find the greatest integer function. So here will be three cases will arise. First, when x belongs to integer. If x belongs to any integer, suppose let's say 2. So the greatest integer function of this will be 2. So 2 square will be 4 minus here also 2. 2 square equals to 4 and greatest integer function of 4 is 4. Therefore it turns out to be 0. And if we take RHL part, or you can say right hand limit, so here h tends to 0 positive, it means we can write x plus h whole square minus x plus h squaring and then greatest integer function where h tends to 0. So h tends to 0. If h tends to 0, our answer of this part will be x square. Answer of this part will be x and we have to do squaring, so x square minus. If we open this, so it turns out to be x square plus h square plus 2hx. And if our h tends to 0, this part will become tends to 0. So our answer will be x square only. So x square minus x square. So it will also become 0. Now if we take LHL, means limit h tends to 0 negative. So this part, so here x minus h square minus x minus h square and then greatest integer function. So whenever there is x minus h where h tends to 0, our greatest integer function will become x minus 1. And there is squaring, so x minus 1 whole square minus, when you open it, it turns out to be x square plus h square minus 2hx, where this part h tends to 0. Therefore
greatest integer function of this part will be x square minus 1. So therefore there is minus over here. So minus x square plus 1. So when you open it, it turns out to be x square plus 1 minus 2x minus x square plus 1. Cancel out. So 2 minus 2x. Now our LHL should be equals to RHL, should be equals to fx at some value. So for the function to be continuous. So this, which is our LHL, at what value of x this part will become 0? At x equals to 1. So at x equals to 1, our LHL become equals to 0 and RHL equals to 0 and fx is also equals to 0. Right? At x equals to 1. Therefore, function is continuous at x equals to 1. So now let's see the options. We have to show is discontinuous. All integer except 1 means it is discontinuous at all integer except 1, because at 1 our function is continuous. So option J is correct answer. Thank you. Hello students, so question is given. Let the big bracket is represent the greatest integer functions and f of x equals to gi function of tan square of x. Then the option is given A. The option A is limit x tends to 0, f of x does not exist. B is this one, C is this one, and D is this one. So first of all, function is given to us that f of x equals to gi function of tan square of x. Now we will see at x equals to 0. Okay. Now you can observe that if x is tending to 0 negative, means just imagine that this is your 0 and this is your negative 0, this is your positive 0. Okay, you can represent 0 plus and 0 negative. As x is means if x is tending to 0 negative, so value of tan square of x will become what? Less than greater than 0, isn't it? Why? If you can put anything, minus of, just imagine that you can put minus of pi by 4, which is lying between what? Minus 0 to 1. So if you will put it here, so tan square of x will be give you the tan pi by 4 will give you the 1, the square of 1 will be 1. So it will give you the more than 1, so it is greater than what? 0. Okay. So from here it is clear that tan square of x is also 0. Okay. Now if x is approaching 0 positive, means in this direction, from here you can observe that if you tan of x will be what? Less than 0. You can consider this with the help of graph also. Just imagine this is graph of what? And this at a pi by 2 and this is minus pi by 2, and graph of tan of x is like this. Okay, like this. Okay. Now if you will see that y equals to tan of x is given to us, if you will approaches to negative, so that see, you can see that it is going towards what? Tan x is greater than 0. If it is approaching the positive, so tan of x positive 0x, means if this is going to this direction, so it is approaching the negative of value of tan of x. So
of course tan square of x value will give you the what? Again positive. Okay, now apply here limit x tends to 0 negative, tan square of x will give you what? 0 again, and limit x tends to 0 positive also give you the what? Value of 0. Okay, because both are approaching to what? 0, and both are giving at this point 0. Okay, from here you can say this is what? LHL, this is your RHL. So LHL equals to RHL, means it is continuous function at x equals to 0. You can see this, there is no breakage. So option C. So first option is given what? Does not exist. This is wrong because it is existing at even 10 limit tan square of x at the x equals to 0 is again giving 0. So LHL equals to RHL equals to f of 0 is also existing. So this is wrong. F of x is continuous function. Of course it is continuous function at x equals to 0. F of x is not differentiable. No, this is differentiable. No differentiable because age should not be sharp. So you can observe that there is no any age of sharp edge. Okay, because of it is coming in the GIO function, so it will lie to 0 to 1. We are considering tan of x. Okay, so this is also wrong. F dash 0 will be equals to 0. Of course, this is right. F dash 0 will be if you will differentiate it to which? Tan of x. Again we know differentiation of this one will become what? F dash 0 will become what? Limit x tends to 0 or h tends to 0, f of h plus 0 minus f of h divided by f of 0 divided by h. Again if you will put, it will become tan square of x divided by what? X. Okay, so this is in GIO functions. So limit h tends to 0, you have to multiply by x and it will become x square, it will be the 1. Again you will put 0, so it will become 1, 0 of course it is giving. So answer of this question is what? This B and D will be the correct answer of this question. Thank you for watching this video. Hello friend, welcome back. I hope you are enjoying a top notch question. And let greatest integer of x be the greatest integer less than or equal to x. Then at which of the following points of function f of x equal to x cos pi x plus greatest integer of x is discontinuous. होता है ना किन पॉइंट पर फंक्शन में डिसकॉन्टिन्यूस होगा. तो मेरे पास 4 पॉइंट्स गिवन है. ए ऑप्शन ए जिसमें x इक्वल टू 1, ऑप्शन बी x इक्वल टू -1, ऑप्शन सी x इक्वल टू 0 एंड ऑप्शन डी x इक्वल टू 2. मैं 1 बाई 1 ऑप्शन चेक कर लेता हूँ. तो x इक्वल टू 1 पे अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस फंक्शन है मेरा x cos पाई टाइम्स. ठीक है, ये हो जाएगा x. अच्छा, जब x की वैल्यू 1 से लेस होगी, ठीक है, तो ग्रेटर इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा? देख सकता हूँ ग्रेटर इंटीजर ऑफ x क्या होता है? इफ x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से कितना आ जाएगा? दिस इज x प्लस 0. सो x टेंडिंग टू 1 लिमिट पुट करता हूँ तो कितना आएगा? 1 टाइम्स कॉस पाई. ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1. सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं राइट हैंड लिमिट फाइंड करूँ एट x इक्वल टू 1 तो कितना आ जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, हम जानते हैं ग्रेटर इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2. ठीक है, तो 1 प्लस में क्या होगा? 1 से बड़ी होगी. दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस x cos पाई टाइम्स के x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. ये लिखना है. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस दिस इज x cos ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. 1 प्लस में कितनी वैल्यू थी? 1 होगा तो हो जाएगा पाई टाइम्स x प्लस 1. सो यहाँ से x इक्वल टू 1 लिमिट पुट करता हूँ, कितना आएगा? 1 टाइम्स cos पाई टाइम्स दिस x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 2. तो cos 2 पाई, तो इसकी लिमिट आ जाएगी 1. तो हमने क्या देखा? जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के
अनइक्वल है। कब? x इक्वल टू 1 के। सिमिलरली x इक्वल टू नेक्स्ट -1 पे चेक करता हूँ, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस, ओके, दिस इज x cos पाई टाइम्स x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सो दिस विल इक्वल टू, हम जानते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू -1 टाइम्स माइनस, दिस इज इक्वल टू x cos ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी, -1 से लेस -2, दैट इज पाई टाइम्स x -2, ओके। नाउ तो यहाँ से आ जाएगा दिस इक्वल टू लिमिट x, अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देता हूँ डायरेक्ट, तो यहाँ से लिमिट अगर रखता हूँ तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू -1 रखता हूँ तो हो जाएगा -1 टाइम्स कॉस, दिस इज -3 पाई, ओके। तो -3 पाई, सिंपल, तो यहाँ से -3 पाई की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज इक्वल टू कॉस 3 पाई, तो हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 3 पाई, और कॉस 3 पाई की वैल्यू -1 होती है, तो हो गया माइनस पहले से है तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा +1, ओके। तो लिमिट कितनी आ गई यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी +1 आ गई। राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस, तो कितना आ जाएगा, x cos, ओके, पाई इंटू, ओके, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस x cos, -1 से बड़ी यानी 0 से छोटी तो -1 होती है, तो जाएगा x cos पाई टाइम्स x -1, ओके। नाउ x इक्वल टू -1 लिमिट पुट करता हूँ, -1 cos पाई, ओके, और ये हो जाएगा -1 रखें तो -2 पाई आएगा, ठीक है। और -2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos 2 को हम जानते हैं cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा मेरा, दैट इज -1 टाइम्स cos 2 पाई। तो ये कितनी आएगी इसकी लिमिट, ये 1 के इक्वल होती तो -1 आ गई। तो यहाँ पर भी क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के अनइक्वल है, तो यानी कि इस पर भी फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। सिमिलरली 0 पे चेक कर सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं फाइंड करूँ एट x इक्वल टू 0 पे, तो कितना आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x cos, ओके, पाई टाइम्स x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल x। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x cos, हो जाएगा पाई टाइम्स, ओके, x 0 माइनस में दैट इज -1 लिमिट आएगी यहाँ से, तो पुट करता हूँ तो हो जाएगा 0, ओके, इंटू कॉस माइनस पाई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट यहाँ से अगर निकालूँ तो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, अब सीधे वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे, तो हो जाएगा x cos 0 प्लस में वैल्यू होगी 0 इसकी, तो x cos पाई टाइम्स x प्लस 0, तो यहाँ से आ जाएगा 0 इंटू, सिंपल 0 इंटू दैट इज कॉस टाइम्स, ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू x की वैल्यू 0 पे 0 हो जाएगी तो कॉस 0, तो 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, ओके। यानी कि इस पॉइंट पर फंक्शन मेरा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, और फंक्शन वैल्यू भी यहाँ पे 0 ही आती है, ठीक है। सो इस पॉइंट पर फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस हो गया। अब केवल पॉइंट बचा मेरा x इक्वल टू 2, ओके। तो यहाँ से देख लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस में फंक्शन चेक करूँ तो हो जाएगा x cos, ओके, दिस इज पाई टाइम्स x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। 2 माइनस में चेक कर रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 होगी, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, ये हो गया x cos, ओके, पाई टाइम्स x प्लस 1, लिमिट पुट करता हूँ यहाँ पे, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स cos x प्लस 1, दैट इज 2 रखूंगा तो 3 पाई आएगा यहाँ पे, cos 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये लिमिट आ गई मेरी -2। और राइट हैंड में फाइंड करूंगा तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, वैल्यू रखता हूँ सीधे यहाँ से, तो आ जाएगा x cos, दिस इज पाई टाइम्स x प्लस 2, ग्रेट इंटीजर x की वैल्यू कितनी होगी, 2 प्लस में 2 होगी, तो वैल्यू रखता हूँ दैट इज 2 cos x इक्वल 2 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, cos 4 पाई, cos 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, दैट इज 2। तो यहाँ भी हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट के अनइक्वल है। तो हमने क्या देखा, किन पॉइंट पर फंक्शन में डिसकंटिन्यूअस है, जिन पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मेरी इक्वल नहीं है। सिंपल। तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है। ओके, थैंक यू, एंजॉय लर्निंग। हेलो गाइज, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि लेट fx जो है वो ये फंक्शन है, कब, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होता है, ठीक है। और फंक्शन fx जो है वो a है, कब, जब फंक्शन का वैल्यू यानी x का वैल्यू 0 होता है, सॉरी, ठीक है, x का वैल्यू 0 होता है तब हमारा फंक्शन का वैल्यू a है। और फिर देखो फंक्शन का वैल्यू ये है जब x ग्रेटर देन 0 होता है। तो बोला है कि डिटरमाइन करो वैल्यू a का सच दैट जो fx हो कंटिन्यूअस हो किस पे, x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूअस अगर मैं बोलूं तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू उसी पॉइंट पे, यानी x इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो f0 पे फंक्शन का वैल्यू, यानी तीनों का वैल्यू अगर इक्वल होगा तभी अपन बोल पाएंगे कि फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि फंक्शन का वैल्यू जो 0 पे है वो तो मेरे को मालूम है, कितना है, फंक्शन का वैल्यू 0 पे हमारा a के इक्वल है, तो ये तो a है। अब RHL और LHL से a की मदद से अपन a का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसका लिमिट सॉल्व करूं या तो मैं इसका लिमिट सॉल्व करूं, ठीक है। तो ये देखो कुछ हार्ड टाइप में लग रहा है, ठीक है, ये कुछ पेचीदा टाइप में लग रहा है ना, हार्ड टाइप में। तो चलो इसको सॉल्व करो। इसका लिमिट अगर मैं निकाल लूं, ठीक है, इसका लिमिट अगर मैं निकाल लूं, x लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो जाएगा, x लेस देन 0 है तो ये वाला लिमिट है मेरा, ये वाला गिवन। अगर मैं इसका लिमिट निकाल लूं तो वो भी तो हमारा एक इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख पाऊंगा कि LHL इज इक्वल टू a, ठीक है। कंटिन्यूअस होने के लिए कोई भी कंडीशन चाहिए, RHL को a के इक्वल कर दो या LHL को, चलो मैं LHL को a के इक्वल कर रहा हूँ क्योंकि ये इजी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी LHL की जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये ऊपर में 1 माइनस कॉस 4x लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है x स्क्वायर। इसकी वैल्यू a के इक्वल होनी चाहिए, ओके, ये बोला है हमें। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, इसका आगे सबसे पहले फॉर्म चेक करो, ठीक है। तो फॉर्म अपन चेक करते हैं, देखो ये 1 माइनस 0 रखो x का वैल्यू, तो ये cos 0 है तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है और नीचे भी 0, तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और नीचे 0 हो जाएगा, तो ये 0/0 का फॉर्म है। तो अपन क्या यूज करेंगे, एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल में क्या होता है, अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है, ऊपर वाले का ऊपर से डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का नीचे से अपना अलग डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मारो तो ये 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos 4x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 4x, यही होता है। अब देखो 4x का डिफरेंशिएशन 4 होता है, ठीक है, और नीचे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इज इक्वल टू a होना चाहिए। फिर से फॉर्म चेक करो x का वैल्यू 0 रख के, जब मैं 0 रखूंगा x का वैल्यू तो ये sin 0 बन जाएगा, ठीक है। sin 0 का वैल्यू 0 होता है तो ऊपर में तो टोटल 0 माइनस 0 दैट इज 0 और नीचे भी 0, तो अभी भी देखो 0/0 का फॉर्म आ रहा। फिर से अपन यूज कर लेंगे किसका, एल हॉस्पिटल रूल को। तो जब मैं यूज करूंगा फिर से एल हॉस्पिटल रूल को तो फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग अलग करूंगा, तो क्या बन जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। ये ऊपर में डिफरेंशिएशन करो तो ये माइनस माइनस देखो प्लस था पहले से, ठीक है, और यहाँ पे था 4 तो हमारा कांस्टेंट था, sin 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos 4x, और फिर से 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 होगा, नीचे 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा और ये एक इक्वल है अभी भी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, फिर से अब x का वैल्यू 0 रखो तो ये बन जाएगा हमारे, देखो 4 × 4 16 है पहले से बाहर में, इंटू cos 0 का वैल्यू 1 और नीचे 2 इज इक्वल टू a। तो यहाँ से मैं बोल पा रहा हूँ 2 8 जा 16, तो a का वैल्यू अपन बोल पा रहे हैं 8 के इक्वल है। हमें a का वैल्यू ही पूछा था ना, तो a का वैल्यू देखो 8 आ चुका है। आई होप ये वीडियो सॉल्यूशन आपको समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन fx क्या है, x प्लस a रूट 2 sin x इफ x लाइज बिटवीन 0 to π/4, 2x टाइम्स cot x प्लस b इफ x लाइज बिटवीन π/4 एंड π/2, a टाइम्स cos 2x माइनस b टाइम्स sin x इफ x लाइज बिटवीन π/2 to π। हमें बोल रहा है इफ fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लाइज बिटवीन 0 to π, देन हमें a और b की वैल्यू बतानी है।
हम क्लियरली देख सकते हैं कि 0 से पाई के बीच में किस किस पॉइंट पे जो है डेफिनेशन चेंज हो रही है f(x) की, वो है x इक्वल टू π/4 एंड x इक्वल टू π/2, राइट। तो अगर फंक्शन को 0 से पाई के बीच में कंटिन्यूस होना है तो π/4 पे एंड π/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एट x इक्वल टू π/4 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वेट करेंगे, वहां से फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम x इक्वल टू π/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वेट करेंगे, वहां से हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, जहां से हम a और b को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूँ सॉल्यूशन में, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू π/4 शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू π/4, राइट। तो इसके आगे क्या कर सकते हैं, देखो मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, x इक्वल टू π/4 पे क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब क्या है, x जो है वो π/4 को अप्रोच कर रहा है बट लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब x जो है π/4 से छोटा रहेगा। अगर x π/4 से छोटा रहेगा तो ये वाली डेफिनेशन जो है वो फॉलो होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू π/4 x प्लस a√2 sin x। ओके, ये मेरे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई एट x इक्वल टू π/4। राइट हैंड लिमिट चाहिए मेरे को x इक्वल टू π/4 पे, मतलब x π/4 को अप्रोच करेगा बट फ्रॉम राइट हैंड साइड। उस केस में जो x है वो π/4 से ग्रेटर रहेगा, तो ये वाली डेफिनेशन फॉलो हो जाएगी। सो इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/4 2 टाइम्स x इंटू कॉट x प्लस b। ये आ गया। यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पे देखो x को π/4 पुट किया, तो यहाँ क्या आ गया, π/4 प्लस a टाइम्स √2 इंटू साइन π/4। साइन π/4 कितना होता है, 1/√2 होता है, इज इक्वल टू, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 इंटू एक्स की वैल्यू π/4 इंटू कॉट π/4, कॉट π/4 हो जाएगा 1 प्लस b, राइट। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, π/4 √2 से √2 कैंसिल प्लस a इज इक्वल टू 2π/4 मतलब π/2 प्लस b, राइट। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, b को इस तरफ ले आएंगे, सो a माइनस b इज इक्वल टू π/2 प्लस π/4, उधर जाके कितना आ जाएगा, माइनस π/4। π/2 माइनस π/4 कितना आ जाएगा मेरे पास, π/4 के इक्वल आ जाएगा, तो a माइनस b इज इक्वल टू π/4, राइट। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ गई, राइट। सेकंड इक्वेशन के लिए मेरे को पता है क्या करना है, सेकंड इक्वेशन के लिए हम π/2 पे सेम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वेट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू π/2 शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू π/2। यहाँ से जो मेरे पास इक्वेशन आ गई वो क्या आएगी, हम देखते हैं। सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए एट x इक्वल टू π/2। मतलब क्या है, हम x को π/2 टेंड करवा रहे हैं बट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब x उस टाइम पे क्या रहेगा, π/2 से छोटा रहेगा। अगर x लेस देन π/2 है तो ये वाली डेफिनेशन फॉलो होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू π/2 2x टाइम्स cot x प्लस b शुड बी इक्वल टू, अब मेरे को क्या चाहिए, राइट हैंड लिमिट चाहिए। कहाँ पे चाहिए, एट x इक्वल टू π/2। मतलब क्या, हम x को π/2 टेंड करवा रहे हैं बट फ्रॉम राइट हैंड साइड, मतलब उस केस में x क्या होगा, ग्रेटर देन π/2 रहेगा। तो ये वाली डेफिनेशन फॉलो हो जाएगी। तो इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a cos 2x माइनस b टाइम्स sin x, राइट। अब यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो मेरे पास इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, x को मैं π/2 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 टाइम्स π/2 दैट इज पाई इंटू कॉट π/2। कॉट π/2 कितना होता है, 0 होता है। तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ b बचेगा। उधर अगर मैं π/2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a टाइम्स कॉस ऑफ 2π/2 दैट इज a cos पाई। cos पाई -1 होता है, तो यहाँ पे माइनस a आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस b टाइम्स साइन π/2। साइन π/2 1 होता है, तो यहाँ पे माइनस b आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से अगर मैं माइनस b को उस तरफ ले जाऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2b इज इक्वल टू माइनस a, राइट। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, a इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स b। ये मेरे पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई, राइट। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या आई थी, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास आई थी a माइनस b इज इक्वल टू π/4, और सेकंड इक्वेशन आ गई a इक्वल टू -2b। दोनों को जस्ट हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। ये है मेरी सेकंड इक्वेशन और ये थी मेरी
फर्स्ट इक्वेशन। ए को अगर मैं यहाँ पे -2b भी सब्सटीट्यूट कर दूँ इस इक्वेशन में तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2b माइनस b इज इक्वल टू π/4। दिस इम्प्लाइज -3b इज इक्वल टू π/4। -3 को अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/12 आ जाएगी। ये मेरे पास क्या आ गया, b आ गया। a कितना है, -2 टाइम्स b, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 इंटू -π/12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 12 कैंसिल होकर 6 बच जाएगा, तो π/6 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, a शुड बी इक्वल टू π/6। ओके, तो ये मेरा a की वैल्यू आ गई π/6, b कितना आ गया, -π/12। यही मेरे को कैलकुलेट करना था। माई फाइनल आंसर इज a इक्वल टू π/6 एंड b इक्वल टू -π/12। थैंक यू। Hello everyone, we have question. Let gx be a polynomial of degree 1 and fx is defined by fx is equals to gx when x is less than or equals to 0 and 1 plus x by 2 plus x whole to the power 1 by x when x is greater than 0. Find gx such that fx is continuous and we have given f dash 1 is equals to f of -1. So, according to the question, let gx be is equals to ax plus b. Now, f of x can be defined as fx is equals to ax plus b when x is less than or equals to 0 and fx is equals to 1 plus x upon 2 plus x raised to the power 1 by x when x is greater than 0. Now, since we have also given that f dash 1 is equals to f of -1. For x is equals to 1, we have, since x is greater than 0, so we have f of x as 1 plus x upon 2 plus x whole raised to the power 1 by x. So we get f dash. So taking ln both side, we get ln of f of x is equals to 1 by x ln 1 plus x divided by 2 plus x. On differentiating the given equation, we get 1 by f of x into f dash x is equals to 1 by x into 1 upon 1 plus x minus 1 upon 2 plus x minus 1 by x square into ln 1 plus x divided by 2 plus x. On putting x is equals to 1, we get 3 by 2 f dash 1 is equals to 1 by 2 minus 1 by 3 minus ln 2 by 3. From here we get f dash 1 as 2 by 3 into 1 by 6 minus ln 2 by 3. When x is -1, then we have f of x as ax plus b. Then f of -1 is equals to minus a plus b. Since we have f of 1, f dash 1 is equals to f of -1. From here we get b minus a is equals to 2 by 3
1 by 6 minus ln 2 by 3. Now, since the given function is also continuous for all value of x, then proving the continuity at x is equals to 0, we have left hand limit, that is LHL, limit x tends to 0 ax plus b, which comes out to be b, and we have value of function, that is f of 0 is equals to b, and right hand limit is equals to limit x tends to 0 1 plus x upon 2 plus x whole raised to the power 1 by x is equals to 1 by 2 to the power infinity, since 1 by 2 is less than 1, so whose power up to infinity gives 0. So from here, since the function is continuous, then LHL is equals to f of 0 is equals to RHL. From here, we get b is equals to 0. Now, putting this value in equation number 1, let this equation number 1. So, putting b is equals to 0 in equation number 1, we get a is equals to 2 by 3 into ln 2 by 3 minus 1 by 6. Now, putting this value in gx, we get g of x is equals to ax plus b. Putting the value of a and v, we get gx is equals to 2 by 3 ln 2 by 3 minus 1 by 6 into x plus 0. This is the required value of gx which we had to calculate in this particular problem. Thank you. I hope you like the solution. हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जे एडवांस 2018 का पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है लेट f1 r टेंड्स टू r। मतलब यहाँ पे 4 फंक्शन दे रखे हैं, चारों की डोमेन और चारों का रेंज भी दे रखी है और एक एक करके चारों फंक्शन भी दे रखे हैं। और फिर हमसे ये मैच द कॉलम में द फंक्शन f1 इज 4 स्टेटमेंट इधर लिस्ट 1 में दी है, 4 स्टेटमेंट लिस्ट 2 में दी है और फिर नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। हम देखते हैं पी ऑप्शन। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है? पी द फंक्शन f1 इज। तो फंक्शन f1 के बारे में हमें बताना है कि वो कंटिन्यूस है, x इक्वल टू 0 पर नहीं, डिफरेंशिएबल है या डेरिवेटिव उसका कंटिन्यूस है या नहीं। तो हमारा f1 x दे रखा है साइन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम पहला फंक्शन देख लेते हैं f1 x जो कि दे रखा है साइन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले देख लेते हैं ये x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है या नहीं। तो f1 0 है, ये क्या होगा? साइन 0 जो कि किसके बराबर? 0 के बराबर। f1 0 प्लस ये भी क्या होगा? 0। और f1 0 माइनस ये भी क्या होगा? 0। तो हम कह सकते हैं कि जो f1 x है वो कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0। तो जो पहली स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट ये p की नहीं हो सकती। अब सेकंड स्टेटमेंट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं कि हम इसका डिफरेंशिएबल चेक करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं x इक्वल टू 0 पर। तो f1 डैश x निकालेंगे। इसके लिए हम f1 डैश x इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 0 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि f डैश 0 पर इसका डिफरेंशिएबल पॉसिबल नहीं है। तो x इक्वल टू 0 पर fx नॉट डिफरेंशिएबल है। तो p के लिए आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। तो p के लिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो q, तो अब हम देखते हैं q द फंक्शन f2 इज। तो अब हमें फंक्शन f2 के बारे में बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी सही होगी। सेकंड फंक्शन f2 x इक्वल टू मोड ऑफ साइन x
अपॉन टेन इनवर्स एक्स किसके लिए, एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और ये 0 है एक्स इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं एक्स इक्वल टू 0 पर। तो f2 क्या है, 0, f2 प्लस, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस इसमें लगा देते हैं, तो मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स। तो साइन एक्स जब 0 से बड़ा होता है x, तो साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, तो मॉड ऑफ साइन एक्स किससे खुलेगा, पॉजिटिव से खुलेगा, तो मॉड ऑफ साइन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, साइन एक्स के बराबर, साइन एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स। तो अब हम इसमें x बाई एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमने इसमें x बाई एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसे हम क्या भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स टेन इनवर्स एक्स, एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स। और इसकी तो हम लिमिट जानती है कि साइन एक्स बाई एक्स अगर x टेंड्स टू 0 हो, x टेंड्स टू 0 हो तो लिमिट कितनी होती है, 1, और टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स की भी 1 होती है, तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 1। अब हम देख लेते हैं f2 0 माइनस पर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स। अब नहीं, ये 0 प्लस नहीं, 0 माइनस है, तो 0 माइनस पर साइन एक्स किससे खुलेगा, नेगेटिव से खुलेगा, क्योंकि साइन एक्स अगर x 0 से कम है तो साइन एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाए माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स। इसमें भी हम x बाई एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हमने x बाई एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसकी भी लिमिट निकाल लेते हैं, x टेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स बाई टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स इंटू एक्स बाई टेन इनवर्स एक्स, और इसकी लिमिट कितनी आएगी फिर दोबारा, -1। तो हम साफ साफ बोल सकते हैं ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि f2 0 और f2 0 प्लस तो आपस में बराबर है और उनकी लिमिट कितनी है, 1, पर जो f2 0 माइनस है ना, ये -1 आ गया, तो इसकी वजह से ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हुआ। तो फिर q के लिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, तो q क्या हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। तो अब हमें आंसर तो वैसे ही पता लग गया है कि ऐसे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो p सेकंड और q फर्स्ट को मैच कर रहा है, ऑप्शन है डी। तो आंसर डी पता लग रहा है, लेकिन फिर भी हम अब आगे सॉल्व करेंगे। और ऑप्शन है द फंक्शन f3 इज, तो f3x के बारे में देखते हैं, साइन ऑफ log e x प्लस 3x, थर्ड f3x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन log e x प्लस 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि जो x प्लस 2 है उसकी हम वो किससे छोटा होगा, 0 से तो बड़ा होगा वो हमेशा, और लेकिन छोटा किससे होगा, क्योंकि हमें इसमें इस फंक्शन का डोमेन अगर -1 e की पावर पाई बाई 2 -2 है, तो x प्लस 2 का क्या होगा, x प्लस 2 होगा 1 से e की पावर पाई बाई 2 के बीच में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 से e की पावर पाई बाई 2 के बीच में। तो log ऑफ x प्लस 2 क्या होगा, 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो साइन ऑफ log e x प्लस 2 क्या होगा, 1 से 0 के बीच में। और जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर तो अगर कोई वैल्यू 0 से 1 है, कोई फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 है, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 0, ये तो हम जानते हैं। तो साइन ऑफ log e x प्लस 2 की वैल्यू आ गई 0, मतलब जो f4x है वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और उसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो फिर उसके f4x, तो अब हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसको मैच करता है। तो हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन क्या है, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड इट्स डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूस, डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ये हो नहीं सकता, क्योंकि वो क्या है, कंटिन्यूस भी है और उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है x इक्वल टू 0 पर। और तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन। तो जो r है, r का क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पर ये f4x नहीं था, f3x था हमारे पास। फोर्थ का अब देखते हैं, फोर्थ लास्ट ऑप्शन जो हमारा है f4x, फोर्थ फंक्शन जो हमारा है f4x दे रखा है x का साइन 1 बाई एक्स इफ x नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ x इक्वल टू 0, x तो ये दे रखा है x का साइन 1 बाई एक्स इफ x नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं f4-x। वो क्या होगा, 2x साइन 1 बाई एक्स प्लस x स्क्वायर cos ऑफ 1 बाई एक्स। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ऑफ 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा,
2x साइन 1/x माइनस कॉस 1/x। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि f4-0 एग्जिस्ट तो करेगा पर वो उसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस नहीं होगा x इक्वल टू 0 पर। f4 0 कॉन्टिन्यूस नहीं है x इक्वल टू 0 पर f'4 0। तो इस ऑप्शन से हमारा कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है? डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड इट्स डेरिवेटिव इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो इससे हमारा साफ साफ एस ऑप्शन का क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो।